ایجوکیشن والی ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 23 لیول 1 کی اسٹوڈنٹ، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے اس خاص اور انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ لرننگ ایج میں۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے ہاؤ اے آئی از ٹرانسفارمنگ دا جاب مارکیٹ، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح سے ہمارے جابس، کریئرز، اسکلز اور فیوچر آف ورک کو بدل رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انسپائرنگ اور نالجبل گیسٹ موجود ہیں۔ ہماری گیسٹ ہیں حافظہ اے آئی والی۔ آپ حافظ قرآن ہیں اور اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی امیزنگ دنیا کو ایکسپلور کر رہی ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اے آئی ایجوکیشن اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے۔ حافظہ اے آئی والی، آپ کو ہمارے انٹرویو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام شکریہ۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ۔ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت شیئر کرنے اور اپنے ایکسپیرینسز کے لیے آنے کے لیے، اپنا ویلیوبل انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ہم چلتے ہیں پھر بنا کسی دیر کے انٹرویو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے شارٹ سا آپ کا انٹروڈکشن کروایا، پلیز میں چاہوں گی کہ آپ ویورس کو اپنے ورڈس میں، اپنے الفاظ میں اپنے بارے میں کچھ بتائیے پلیز۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام حافظہ آمنہ شبیر ہے، حافظہ اے آئی والی۔ میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں اور میں ایک حافظ قرآن ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ریحان اسکول میں اے آئی ٹیچر ٹریننگ پروگرام میں لیول 1 کی بیچ 6 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی اسکلز سیکھ رہی ہوں۔ میرا مقصد صرف اے آئی سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس نالج کو لوگوں تک پازیٹیولی پہنچانا ہے اور اپنی اسکلز کے ذریعے سوسائٹی میں ایک میننگ فل امپیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات سے بھی بلیو کرتی ہوں کہ کنٹینیوس لرننگ جو ہے وہ ایک سکسیس کا باعث بنتی ہے۔ سو یہ ہے میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست، بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں، اسپیشلی آپ کا جو ہے کہ اے آئی کو پازیٹیولی دوسروں تک پہنچانا جو ہے، یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ اور ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پلیز کہ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور اس فیلڈ میں آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں دلچسپی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ سے جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی اور انوویشن کو ایکسپلور کرنا پسند تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ریحان اسکول کے بارے میں پھر پتہ چلا، اور بیسیکلی ریحان اسکول کے بارے میں مجھے میرے فادر نے بتایا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ فیس بک وغیرہ پہ دیکھی تھی، تو پھر انہوں نے آگے میرے ساتھ شیئر کیا اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم اس بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ مجھے اے آئی سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے اس فیلڈ کے بارے میں بتایا اور پھر میں اس فیلڈ میں آئی ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک میرا جو ہے اس جرنی میں سب کچھ پازیٹیو جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ کے نزدیک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ اوکے، میرے نزدیک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی اسمارٹ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں لائک مشینس کو انسان کی طرح لرننگ اور انالائزنگ اور ڈیسیژن میکنگ کی کیپیبلٹی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے آئی ایجوکیشن ہے لائک ہیلتھ کیئر، بزنس اور ڈیلی لائف کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہمیں ایفیشینٹ بنا رہی ہے۔ ہم روزانہ اے آئی کو موبائل ایپس اور سرچنگ وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہماری پروڈکٹیوٹی کو بھی امپروو کر رہی ہے اور نئے اپرچونیٹیز بھی ہمیں دے رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ کے خیال میں اے آئی جاب مارکیٹ کو سب سے زیادہ کس طرح سے ٹرانسفارم کر رہی ہے؟ اے آئی جاب مارکیٹ میں کس طرح ٹرانسفارم کر رہی ہے کہ لائک وہ بہت ریپڈلی ٹرانسفارم کر رہی ہے، اس کی روٹین اور ریپیٹیٹیو ٹاسک آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امپلائیز کو زیادہ کریٹیو اور اسٹریٹجک کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کمپنیز میں بھی لوگوں کو پریفر کرتی ہے، اے آئی ٹولز اپنے ساتھ سکھاتی ہے، ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ ان میں کیپیبلٹی اور ڈیجیٹل اسکلز کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔
राइट। क्या आप समझती हैं कि एआई कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स को ख़त्म कर देगी या सिर्फ उनकी नेचर को चेंज करेगी? नहीं, मेरी ओपिनियन में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि उनकी सिर्फ नेचर को चेंज करेगी। क्योंकि कुछ रिपीटेटिव जॉब्स कम हो सकती हैं, लेकिन उनकी जगह नए रूल्स और करियर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। जो लोग लर्निंग और स्किलिंग पर फोकस रखेंगे वो फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की बजाय हमें उसके साथ ग्रो करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। हुँ, तो इस तरह से तो फिर जो है ये सीखना तो ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि अगर तो हमें इस बात का खदशा है, डर है कि हमारी कुछ जॉब्स खत्म हो जाएँगी, तो फिर ये है कि कुछ नई जॉब्स भी तो ये पैदा करेंगी ना। तो फिर अगर हम बिल्कुल इसको ऐसे ही है। सीखते हैं, तो हमें फिर नई जॉब्स मिल जाएँगी। तो वो तो फिर बिल्कुल मसला ऐसे ही है। तो ठीक है जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। अच्छा, आज के दौर में कौन-सी जॉब्स हैं जो एआई की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं? मेरे ख़्याल से इस वक़्त कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्पेक्ट हो रहे हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीटिव टास्क को बहुत फास्ट कंप्लीट कर लेती है, जिससे कंपनीज़ का टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होते हैं। और लेकिन इसके साथ नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रूल्स भी हैं जो क्रिएट हो रहे हैं। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बना लेंगे और इसके साथ साथ कंटिन्यूसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्टडी करेंगे। सही। तो आपके ख्याल में एआई जो है कौन-सी नई जॉब्स को क्रिएट कर रही है? वो जो कोई नई जॉब्स हैं, प्लीज़ उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ जॉब्स को चेंज नहीं कर रही, बल्कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रही है। लाइक आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमोट इंजीनियर, ट्रेनर है, जैसे डेटा एनालिसिस है, कंटेंट क्रिएशन है सबसे बड़ी चीज़, और कंटेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। इस तरह के करियर्स बहुत डिमांड में हैं। लाइक फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के नए डोर्स भी ओपन हो रहे हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बराबर है। बहुत खूब। आपके ख्याल में फ्यूचर में जॉब लेने के लिए डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी या प्रैक्टिकल स्किल्स? मेरे ख़्याल में डिग्री अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रैक्टिकल स्किल्स ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। एम्प्लॉयर्स सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि रियल प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी देखते हैं। अगर किसी के पास स्किल्स और लर्निंग माइंडसेट हो तो वो बहुत आगे जा सकता है। इसलिए हमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल करना चाहिए, और ये आजकल के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही। एआई के दौर में एम्प्लॉयर्स कैंडिडेट्स में कौन-सी स्किल सबसे ज़्यादा तलाश करेंगे? मतलब ज़रा ये हाइलाइट कीजिएगा कि कौन-सी स्किल्स हैं जिनकी तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? ओके। फ्यूचर में एम्प्लॉयर्स उन लोगों को प्रेफर करेंगे जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होंगी। क्रिएटिविटी जो है वो टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स बन चुकी हैं। जो लोग क्विकली न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और लर्निंग एटीट्यूड ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी। बिल्कुल, बेहतरीन 100% आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे जो मैं हाइलाइट करूँगी जो आपने बात कही है कि साथ-साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जी। वो बच्चे स्पेशली वो जो यंग बच्चे-बच्चियाँ हैं तो जो कि जस्ट इस पे डिपेंड करके बैठे हुए हैं कि नहीं अब जो सीख रहे हैं कुछ बच्चे मतलब ये भी ज़हन में बना के बैठे हुए हैं सब कुछ इसी से पूछना है, इसी से करवाना है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। उनको जो है ये बात जो है स्पेशली समझने की ज़रूरत है कि जो आपकी अपनी गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत ज़हानत अता की है, उसको भी पॉलिश होना ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल साथ-साथ रखना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल अपनी ऐसे जगह पे प्रॉपर वर्क करेंगी, उसकी हेल्प लें एआई की और दूसरी बात ये है कि ये अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, उसको भी पॉलिश मज़ीद करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका जवाब। अ,
Hello. हाफिज़ आप हमारे साथ हैं? आर यू देयर? आई थिंक वीडियो स्टॉप हो गई है। मुझे लगता है उनकी लाइट चली गई है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ हाफिज़ा एआई वली, और आई थिंक उनकी तरफ इंटरनेट का कुछ इशू हो गया है जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल जो है ऑफलाइन हो गई हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत जो अभी तक मैंने उनसे बातें पूछी तो उन्होंने बड़े बेहतरीन जवाब दिए हैं। और स्पेशली कि जो आगे इसका जॉब में जॉब मार्केट में एआई का जो रोल है, और इसके बारे में जो स्पेशली डाउट्स हैं, जो फ़ियर्स हैं, उनकी क्लैरिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। कि हमारी जो स्पेशली यूथ है, उनको इस बात का डर है, या फिर जॉब वाले लोग जो हैं, उनको डर है कि हो सकता है कि ये हमारी जॉब्स को ख़त्म कर दे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, तो हमें नई जॉब्स ना मिलें। लेकिन साथ जो है ये वाज़े उन्होंने किया है, और बहुत अच्छे से कि सिर्फ ना कि ये जॉब्स को ही ख़त्म करेगा, बल्कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा जो है मौके देगा। तो इसलिए फिर ज़रूरी है कि नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है अपडेटेड रहा जाए। तो अपडेटेड रहेंगे, नई स्किल्स को सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ को, स्पेशली एआई को, एआई के सारे टूल्स को, तो इंशाल्लाह ये जो आपके लिए, हमारे लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, तो हमें फ़ौरन ही नई जॉब्स मिल जाएँगी। और बहुत सी इस हवाले से उन्होंने जो है वो बताया है कि चीज़ें हैं, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, डाटा एनालिसिस है, इसके अलावा पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जो है वो मुख्तलिफ तरीकों को एडॉप्ट करते हुए डाटा इंजीनियरिंग है। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें साथ-साथ हम सीखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे लिए जो है वो नए दरवाज़े खुलते रहेंगे। इसके अलावा आगे मैं आपसे पूछना चाहती थी कि टीचर्स और एजुकेटर्स के हवाले से जो प्रोफ़ेशनल्स के लिए जो है वो क्या है? तो वो भी वेट करते हैं, हो सकता है अभी आ जाती हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है उनके ख़यालात को मज़ीद शेयर करते हैं। और बाकी ये है कि फ्रीलांसिंग के हवाले से भी मैं कुछ पूछना चाहती थी उनसे। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो है इसकी मार्केट जो है क्या है? यहाँ की क्या-क्या नई अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं? इसके अलावा जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए जॉब मार्केट में जो है एंटर होने के लिए जो है उनको क्या-क्या जो है वो किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा? तो इस हवाले से इंशाल्लाह सारी बातें करेंगे। वेट करते हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर तक जॉइन कर लें। मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। जी।
आपकी गुफ्तगू खत्म। मिस हफ्सा, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी जाके चेक करके आई हूँ, अब मेरा नेट आ गया है, तो आप फिर कंटिन्यू कर लें। सॉरी मिस, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आजकल बहुत कोई ज़्यादा बात नहीं है, इशू मैं आपका वेट कर रही थी। मैंने एंड नहीं किया था, मुझे यकीन था कि अभी जो है कोई मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम थैंक यू सो बात कर मच। रहे थे। जी, जी। हम बात कर रहे थे तो थोड़ी-सी मुझे बस थोड़ा-सा मज़ीद बताइएगा कि स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन सेक्टर में ये क्या किस तरह से जो है ये रोल प्ले करेगा और क्या-क्या नई जॉब्स हैं या टीचर्स को इस हवाले से कोई अगर थॉट है तो वो प्लीज़ क्लियर कर दें? मतलब टीचर्स की कोई मिस जॉब्स को हेलो। रिप्लेस करके कर सकता है ये या टीचर्स के रोल को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा या फिर क्या आपके ख्याल में ये टीचर्स के लिए कर सकता है? हेलो। जी, जी। आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें प्लीज़। हमारा बेसिकली रुक गया था, तो काइंडली आप मुझे बता दें कि आपका नेक्स्ट कहाँ से क्वेश्चनिंग से स्टार्ट किया, जो आपने मुझे सेंड किए थे उसका आप बता दें। मेरा एक्चुअली लैपटॉप में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मैं दोबारा से करके रिजॉइन करती हूँ। आप मुझे बता देंगे, हम किस उससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन।
जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं शायद आपको बताना भूल गई थी, मैं लाइव है ये, ठीक है? तो इसमें जो है ना वो ये कि काफ़ी देर बीच में वेट करना पड़ा है। जी, तो मैं जी, अपनी बस वो बात इंटरनेट का इश्यू हो गया था तो चलिए कोई वरना बात नहीं है। अदरवाइज़। हम अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या आप समझती हैं कि फ्यूचर में हर जॉब के साथ एआई स्किल्स का होना ज़रूरी होगा? फ्यूचर में एआई स्किल्स का होना ज़रूरी होगा, आप ये पूछ रही हैं? जी, जी। बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि आने वाले जो चंद साल हैं उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी तरह से ज़रूरी हो जाएगी जैसे आजकल के दौर में बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट स्किल्स हैं। और इसके साथ-साथ हर प्रोफ़ेशनल चाहेगा कि वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बिज़नेस फ़ाइनेंस या मीडिया हो या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे। इसका मतलब भी ये नहीं है कि हर इंसान आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या इंजीनियर बनेगा, बल्कि हर प्रोफ़ेशनल को एआई टूल्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए इंसान को। और जो लोग एआई को अपनी स्किल्स के साथ कंबाइन करेंगे, उनके लिए करियर अपॉर्च्युनिटीज़ और ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सही। और कोई मेरी तरफ से कोई इश्यू हो गया है? एनी हाउ मुझे प्लीज़ बताइएगा कि जो स्पेशली लोग डर रहे हैं इससे, तो उनके हवाले से कि जो एआई है, कोई उनकी लिए वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए स्पेशली आप क्या समझती हैं? तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगी कि मेरा तो यही ख़्याल है कि हमें एआई से डरना नहीं चाहिए, ये तो बल्कि हमारे काम को और ज़्यादा आसान करती है। पहले ये होता था कि हम लोग बहुत मतलब एआई तो काफ़ी पहले से आ चुका है, लेकिन ये अब आगे हुआ है यहाँ पे। हमें ये समझना चाहिए कि पहले हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे, तो हमारे काम में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, लेकिन अब हम लोग जैसे ही एआई से कोई भी हम मदद लेते हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे हमें उसका आंसर कर दिया और ये हमारे लिए एक बहुत मुफ़ीद चीज़ है। मगर ये नहीं है कि हमें हर चीज़ को लाइक एआई से ही पूछना होगा, हमें कोई अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपना भी कोई इस्तेमाल करना होगा, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमें उसको भी यूज़ करना होगा। राइट। एआई की वजह से फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ में क्या चेंजेज़ आ रही हैं? फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क को पहले से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया गया है और आज अगर एक फ्रीलांसर एआई की मदद से कंटेंट राइटिंग करता है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है या कोई भी वीडियोस एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कह लें, और ये सब वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसी सर्विसेज कम वक्त में और बेहतर क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर सकता है वो। और इसके साथ-साथ दुनिया भर की कंपनीज़ में रिमोट टैलेंट को हायर कर रही है। पाकिस्तान के जो यूथ के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो घर बैठे जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, ज़बरदस्त। अच्छा, यंग थैंक यू। ग्रेजुएट्स जो जॉब मार्केट में एंटर करने वाले हैं, उन्हें एआई के चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं कह रही हूँ कि यंग ग्रेजुएट्स हैं जो जॉब मार्केट में अभी एंटर करने वाले हैं, तो उन्हें एआई की चेंजिंग एनवायरनमेंट के हवाले से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ डिग्री पर डिपेंड नहीं उनको रहना चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम और एआई जैसे टूल्स का नॉलेज भी हासिल करना चाहिए। हर स्टूडेंट को ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए। और जो लोग कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं और नए टूल्स को अडॉप्ट करते हैं, वो चेंजिंग और जॉब मार्केट में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। गुड। क्या एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए यूज़फुल है या फिर नॉन टेक्निकल लोग भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं? मेरे ख़्याल से तो वो एआई सिर्फ प्रोग्रामर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं है। ये लाइक
टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स और स्टूडेंट्स भी एआई का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज एआई हर फील्ड का हिस्सा बन रहा है, इसलिए चाहे आप अगर आप एआई को सीख लेते हैं, प्रोडक्टिव और करियर दोनों में आप इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें आप फिर कामयाब ही कामयाब हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, आपके नज़दीक एआई प्रूफ करियर का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या कोई करियर कंप्लीटली एआई प्रूफ हो सकता है? मेरे ख़्याल में एआई कोई भी प्रूफ करियर करियर। जी, जी, मैं बता रही हूँ। मेरे ख़्याल में कोई भी करियर 100% एआई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो करियर्स जहाँ क्रिएटिविटी और लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, उन पर एआई का असर कंपैरेटिवली कम होता है। और इसलिए हमें एआई से डरने की बजाय अपनी यूनिकली ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और इसके साथ-साथ एआई को अपना असिस्टेंट बनाकर काम करना चाहिए। सही। और प्लीज़, अभी जैसे कि आप भी एक हम फीमेल्स हैं, तो मैं फीमेल्स के हवाले से, वुमेन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में वुमेन और होम मेकर्स के लिए एआई किस तरह से नए करियर और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है? फीमेल्स और होम वुमेन्स के लिए ये इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है कि जो फीमेल्स हैं, मतलब बाज़ औक़ात वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, उन्होंने घर में रह के ही काम करना होता है, हाउसवाइफ़ भी होती हैं, उनको किसी को परमिशन नहीं होती है। तो वो ये है कि वो ऑनलाइन ऑनलाइन ही आजकल सब कुछ चल रहा है, तो वो ऑनलाइन अपनी इन अपॉर्च्युनिटीज़ को हासिल करें, एआई सीखें और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें बनाएँ, अपलोड करें, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बनाएँ और इस तरह से वो इसका फ़ायदा उठाएँ और फिर अर्निंग भी करें। सही। लास्ट में मैम, हमारे व्यूअर्स के साथ आप क्या कोई इंस्पायरिंग मैसेज शेयर करना चाहें प्लीज़ एआई के हवाले से? तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप कुछ ज़रूर ओके। शेयर करें। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये बस यही कहना चाहूँगी कि एआई से डरने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे सीखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और हर नई टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए नए मौके लेकर आती है जो उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, बहाने नहीं करते, लेम एक्सक्यूज़ेज़ नहीं करते। क्योंकि जिसने करना होता है ना, उसने बस किसी भी तरह कर लेना होता है और जिसने नहीं करना होता उसका कभी कोई एक्सक्यूज़ होगा, कभी कोई एक्सक्यूज़ होगा। तो दिल से जो आपने करना होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया करें और ख़ुद पर पॉज़िटिव आप लोगों को यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद से आप लोगों को ख़ुद के ऊपर अपना ईमान इतना आप लोग स्ट्रॉन्ग करें कि आप लोगों को यकीन हो कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाब करे और रोज़ कुछ नया सीखें और अपनी स्किल्स को वक्त के मुताबिक अपडेट करते रहें। याद रखें, फ्यूचर उन लोगों का ही है जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और लर्निंग को कभी नहीं छोड़ते। सो बहुत शुक्रिया मिस हफ्सा आपका और सबका। अगर आपको मेरी कोई भी इस गुफ्तगू में बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत है। नहीं, नहीं, आपने बहुत ही माशाल्लाह अच्छी और इंसाइटफुल अपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। बल्कि आपका थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और स्पेशली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर जॉब मार्केट के हवाले से जो अपने वैल्यूएबल आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे साथ आप शेयर किए हैं, जिसके हवाले से स्पेशली जो नए लोग आ रहे हैं इस हवाले से उनको भी गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर। और इसके अलावा इंशाल्लाह, जो जो आ चुके हैं तो उनके भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो आज की गुफ्तगू से इंशाल्लाह। हमें ये समझने में मदद मिली है कि एआई सिर्फ जॉब्स को रिप्लेस करने का नाम नहीं है, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने, नई स्किल सीखने और अपने करियर को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए भी एक ज़रिया है। तो मुझे उम्मीद है ब्लेस। कि हमारे व्यूअर्स को भी, खास तौर पर ये स्टूडेंट्स को, स्पेशली टीचर्स को और यंग प्रोफेशनल्स को इस इंटरव्यू से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा और एआई को अपने फ्यूचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो देखेंगे। तो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स कि आपने हमारा इंटरव्यू ये देखा, सुना, अपना कीमती वक़्त हमें दिया।
اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اس انٹرویو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ڈپریشن والی، اور آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں سب کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم آمین. ورحمۃ